Dear students, let us continue with properties of aryl lights. Next reaction is reaction with metal. Wurtz-Fittig reaction. Or we can say it is a reaction with sodium in presence of ether as solvent. Dry ether, why we write dry ether? Because if water is present, sodium will at once react violently with water. So we need a solvent which is polar, but that does not react with sodium. So we use dry ether, that is ROR. Dry mean without moisture. What happens when we treat Wurtz-Fittig reaction? When we treat two alkyl halides with sodium, it is called Wurtz reaction. मतलब इधर भी alkyl halide reaction with sodium, उसको बोलते हैं Wurtz reaction. When we treat aryl halide with alkyl halide in presence of sodium, then it is called Wurtz-Fittig reaction. What happens? Sodium, आपको पता है electropositive element है, we will prefer what? Electronegative, that is chloride. Free radicals will be generated from this side phenyl, from this side methyl. They will combine to form toluene. Plus क्या बनेगा बच्चे? Sodium chloride. Now reaction with sodium in presence of ether, dry ether. जैसा मैंने बोला कि अगर हम दोनों साइड ले लें किसको? अल्काइल हैलाइड, दोनों साइड ट्रीट करें सोडियम से, तो ये रिएक्शन है. We call it Wurtz reaction. And in this case we get alkane. हमें क्या मिलेगा? R. जैसे मिथाइल मिथाइल होगा, बनेगा CH3 प्लस बनेगा सोडियम क्लोराइड. तो दोनों साइड एराइल हो, एराइल लाइट, दिस इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन. तो दोनों के बीच का, यानी कि एक साइड एराइल एक साइड एल्काइल, इट इज कॉल्ड Wurtz-Fittig reaction. तो रिएक्शन ऑफ एराइल लाइट विद सोडियम, दैट इज ओनली एराइल लाइट. बोथ साइड एराइल लाइट आएंगे, सोडियम प्रेफरेबली विल कंबाइन विद क्लोराइड, और जो फिनाइल बचेंगे दे विल कंबाइन विद ईच अदर, वी गेट डाइफिनाइल, प्लस क्या बनेगा बच्चे? सोडियम क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? Fittig reaction. Next we have, इसको कर लेते हैं पहले. Next we have reaction with copper powder, Ullmann reaction. Now, what is the difference between Fittig reaction and Ullmann reaction? In Fittig reaction, we treat any aryl halide with sodium. It may be chloride, it may be bromide, iodide. But in Ullmann reaction, it is only iodobenzene. Iodoarenes are treated with what? Copper powder. Iodoarenes को हमने ट्रीट करना किससे? Copper powder से. Iodoarenes are treated with copper powder. Is a difference. बनना इसमें भी डाइफिनाइल है बच्चे. कॉपर आयोडीन से कंबाइन करके क्या बनाया? क्यूप्रस आयोडाइड. जैसे यहाँ बना सोडियम क्लोराइड. So there is a similarity between this reaction, which is called as Ullmann reaction, and Fittig reaction. But there is a difference also. The difference is, in this case, we can take any aryl halide and treat it with sodium. And in this case, we specifically take iodoarenes, iodobenzene जैसे, and treat with copper. दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, डाइफिनाइल. Along with formation of यहाँ सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि आपने सोडियम का इस्तेमाल किया, या कॉपर का आयोडाइड बनेगा, या सोडियम का कोई भी हैलाइड बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन what you have taken, whether it is chloride, whether it is bromide or iodide. Next we have reaction with magnesium. ये आपने बच्चे अल्काइल लाइट में भी स्टडी किया इसको. ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनता है इसमें, वहां पे RX था, यहाँ पे फिनाइल X है. X मतलब ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन. यूजुअली वी यूज ब्रोमाइड. ग्रिग्नॉट रिएजेंट में ज्यादातर हम लेते. एराइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स react with magnesium in presence of dry ether. Dry ether, जब भी हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रेफरेबली हम सॉल्वेंट यूज करते हैं ड्राई ईथर, क्योंकि वाटर अगर बीच में रहेगा तो जो आपका एक्टिव मेटल है सोडियम मैग्नीशियम, वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा. तो वी यूज ड्राई ईथर. हमने किसको यूज करना बच्चे? ड्राई ईथर को. ठीक है. तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपको पता है बेरिलियम मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है. इसकी टेंडेंसी है 2 बॉन्ड्स बनाने की. तो ये क्या करता है? बीच में एंट्री करता है एंड फॉर्म
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन प्लस Mg, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो चेंज हुआ है। एराइल क्लोराइड के केस में सॉल्वेंट इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये कंपाउंड, ये भी ईथर ही है पर साइक्लिक ईथर कह सकते हैं आप, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो यहाँ पे हमने किसको यूज किया बच्चे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को सॉल्वेंट, बनना वही है, नॉट ये, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद लिथियम, ये भी आपने वहां पे स्टडी किया था, लिथियम के साथ रिएक्शन भी आपने स्टडी किया था। लिथियम के साथ रिएक्शन में क्या है बच्चे, कि जो ब्रोमोबेंजीन है ये रिएक्ट करता किससे बच्चे, लिथियम से, और बनता फिनाइल लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड। देखिए फर्क देखें, जब हम सोडियम से ट्रीट किए तो सोडियम ने क्या किया, उसने हैलोजन को प्रेफर किया और बनाया सोडियम हैलाइड, जबकि लिथियम क्या कर रहा है, लिथियम दोनों से कंबाइन कर रहा है। उसका कारण क्या है कि लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए लिथियम देन वी गेट सोडियम, है ना, लिथियम सोडियम, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन सबसे पहला एलिमेंट है, स्मॉल साइज, इसका छोटा साइज है, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, तो इसकी टेंडेंसी कोवलेंट बॉन्डिंग साइड भी है और आयनिक बॉन्डिंग साइड भी है, इसलिए ये फिनाइल से ही बॉन्ड बना लेता और ब्रोमाइड से भी। जबकि आप सोडियम को देखें तो सोडियम प्रेफर्स आयनिक बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का फर्क देखिए कि एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। अगर हम सोडियम की बात करें, अभी हमने देखा यहाँ पे वी टॉक ऑफ सोडियम, ये देखिए बच्चे सोडियम, तो सोडियम ने किसको प्रेफर किया, सोडियम ने क्लोराइड को प्रेफर किया, आयनिक बॉन्डिंग बनाई, ये देखिए सोडियम क्लोराइड, फिनाइल फिनाइल जो बच के रेडिकल्स इन्होंने बना दिया डाइफिनाइल। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिथियम है दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आपको पता है अल्कली मेटल्स। यहाँ पे इसने क्या किया, डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, इसने दोनों से बॉन्ड बनाया, फिनाइल लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड, फिनाइल लिथियम बनाया और साथ में क्या बनाया बच्चे, लिथियम ब्रोमाइड, इस तरीके से। नेक्स्ट इज रिडक्शन, रिडक्शन हेलोरीन्स को हम रिड्यूस करते हैं विद निकल एल्यूमिनियम एलाय इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, निकल एल्यूमिनियम एलाय। इसमें जो रिडक्शन है बच्चे आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करता है, the removal of electronegative element is also called reduction, and we get benzene plus HCl. So these are the other reactions of what, aryl halides. Now the most important reactions of aryl halides, ring substitution और electrophilic substitution reactions of haloarenes. कल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चे, यहाँ पे जो आपका रीजेंट है न्यूक्लियोफाइल वो यहां पे अटैक कर रहा है, अगर आपको याद है तो इट इज अटैकिंग एट दिस पॉइंट विच इज कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है यहाँ पे, यहाँ अटैक कर रहा है, ठीक है ना, और इसको यहां से निकाल रहा है क्लोराइड को। इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसमें वो अदर देन दिस कार्बन, इस कार्बन को छोड़ के बाकी जगहों पे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच सिस्टम पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। क्वेश्चन राइज होता है कि जो आपका हेलोरीन है इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, कि अटैक वो वहां करेगा इट हैज इलेक्ट्रॉनिक रिचनेस। अगर हम हेलोरीन्स को देखें, जैसे हम बात करें, ये हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें बच्चे आप देखें दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा। तो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन वो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे करेगा, मेटा पे करेगा, पैरा पे करेगा। तो इसका आंसर हमें कौन देता, राइवनेस। आपको पता है कि इन क्लोरोबेंजीन देयर इज n पाई कंजुगेशन, n पाई कंजुगेशन, n इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, n पाई कंजुगेशन। n पाई कंजुगेशन की वजह से आप देखें इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉनिकली रिच। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रैवल करेगा, ये आगे जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो अगेन देयर इज n पाई कंजुगेशन, n पाई, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिचनेस कहां पे आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस कहां पे हुई, डिक्रीज कहां पे हुई, ऑर्थो पे, या कहां पे हुई, मेटा पे, सॉरी पैरा पे। मेटा पोजीशन देखिए अनअफेक्टेड रही, मेटा पोजीशन इस इलेक्ट्रॉन रिलीज से, जो रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन रिलीज है उससे मेटा पोजीशन क्या रही, अनअफेक्टेड। अफेक्ट कौन से हुई, ऑर्थो और पैरा। अब यहाँ पैरा पे पहुंच गया, फिर n पाई कंजुगेशन, देखिए n पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन, n सिग्मा पाई, फिर कंजुगेशन और फिर रेजोनेंस, और देखें फिर
फिर अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज हुई, पैरा पे। इट मीन क्लोरोबेंजीन की जो अर्को और पैरा पोजीशन है दे आर इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो जब हम इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे विद क्लोरीन हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट, इसके अलावा एसाइलेशन है, एल्काइलेशन, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो हेलोजिनेशन है वो या तो आर्थो पे हुई है बच्चे या पैरा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट हेलोजिनेशन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, आपके दिमाग में आता है फेरिक क्लोराइड क्यों डाल, फेरिक क्लोराइड इज ए ल्यूइस एसिड, ये क्या करता, फेरिक क्लोराइड ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता, ये विद इलेक्ट्रॉन यहां से किसको निकालता बच्चे, क्लोराइड को, विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Cl पॉजिटिव जनरेट करता इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक करती है बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, एंड वी गेट डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये बच्चे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जनरेट हुआ, विद इलेक्ट्रॉन इसने इसको निकाला, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, उसने अटैक किया इसकी कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जैसे ऑर्थो पे करेगा वैसे पैरा पे, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव यहां से Cl नेगेटिव वापस ले लेगा, बना लेगा HCl। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन किसको कहते हैं, अब रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव बाय NO2 पॉजिटिव। H पॉजिटिव दिस इज OH नेगेटिव एंड दिस इज NO2 पॉजिटिव, दिस NO2 पॉजिटिव रिप्लेस करेगा किसको बच्चे, H पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन, ऑर्थो एंड पैरा। और ये इसका मैकेनिज्म दिया है बच्चे, हमने यहाँ देखिए HNO3 और H2SO4 का इस्तेमाल किया, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 एक्ट एज बेस, H2SO4 मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन NO3, H2SO4 ने एसिड का काम किया बच्चे, देखिए H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव किया, H पॉजिटिव HNO3 से कंबाइन किया, क्या बनाया H2NO3 पॉजिटिव, H2NO3 पॉजिटिव ने यहाँ पे देखिए किसका लास्ट किया वाटर का, और मैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, अटैक द ऑर्थो पोजीशन and the para position, and we get what ortho and para nitro derivatives. Nitration. Next we have sulfonation. Sulfonation क्या होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ H by SO3H। लेकिन याद रखना सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं होता, SO3 होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें दिखाया हुआ है। H2SO4 सेल्फ रिएक्ट करता अपने ही मॉलिक्यूल से H2SO4 प्लस H2SO4 gives SO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, ये तो न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, पॉजिटिव तो है नहीं, बट इसका जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, सल्फर, इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन आर कैरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, याद रखिए बच्चे, दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बच्चे हम बनाते हैं, कई बार डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखें ये जो आपकी बेंजीन रिंग है उसका पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर पे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये पाई आगे जाएगा, बन जाएगा SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव इसी H को देखिए जब पाई ने इस पे अटैक करना, इस पे SO3 पे, तो इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो खत्म होना, रिंग का एरोमेटिक, रिंग ने अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करना, जब रीगेन करेगा तो ये बॉन्ड वापस आएगा, H पॉजिटिव का लॉस होगा और वही H पॉजिटिव ये ले लेगा और बन जाएगा SO3H। इसलिए हम कहते हैं कि सल्फोनेशन मीन रिप्लेसमेंट ऑफ H बाई H पॉजिटिव बाई SO3H, H का रिप्लेसमेंट होना SO3H से, ठीक है ना। जनरल हम ये बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है बच्चे, SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बच्चे, इस चीज को दिमाग में रखना। तो लिखते हम ऐसे ही, मैकेनिज्म में जाएं तो SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल। कल को आपको पूछ ले कोई कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप कहेंगे SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।